जय हिंद दोस्तों। हम लोग बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं पेपर फर्स्ट का। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेपर फर्स्ट में इंग्लिश और हिंदी आना है और इसमें आपको 30% अंक लाने हैं। इंग्लिश से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी से 70 अंक आएंगे। दोनों में आपको पास करना है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और ध्यान दीजिएगा, इसमें नेगेटिव मार्क भी है, यानी इसमें नेगेटिव भी है, तो ध्यान से जो है आप लोग इस पेपर को कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन को। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द डिकेड आफ्टर लिबरेशन, floriculture industries took giant steps in the export arena. This era has seen a dynamic shift from sustenance production to commercial production. The area under floriculture production in India is around 249,000 hectares, with a production of 1659,000 tons loose flowers and 484,000 tons but cut flowers. Floriculture is now commercially cultivated in several states, with Tamil Nadu 20%, Karnataka 13.5%, West Bengal 20.2%, having gone ahead of other producing states like Madhya Pradesh, Mizoram, Gujarat, Andhra Pradesh, Odisha, Jharkhand, Haryana, Assam, Chhattisgarh. Government of India has identified floriculture as a sunrise industry and accorded it 100% export orient, oriented status, owing to a steady increase in the demand of flowers. Floriculture has become one of the important commercial trades in agriculture. Hence, commercial floriculture has emerged as high-tech activity taking place under controlled climatic conditions inside greenhouse. Floriculture in India is being viewed as a high-growth industry. Commercial floriculture is becoming important from the export angle. The liberalization of industrial and trade policies paved the way for development of export-oriented production of cut flowers. The new seed policy had already made it feasible to import planting material of international varieties. It has been found that commercial floriculture has higher potential per unit area than most of the field crops and is therefore a lucrative business. Indian बहुत बड़ा ये है Indian floriculture industry has been shifting from traditional flowers to cut flower for export purpose. The liberalized economy has given an impetus to the Indian entrepreneurs for establishing export-oriented floriculture units under controlled climatic conditions. Indian floriculture industry comprises of flowers such as rose, tuberose, glens, anthurium, carnations, marigold, etc. India's total export of floriculture was 571 crores या 18.94 million dollars in 2018-19. The major importing countries were United States, Netherlands, United Kingdom, Germany, and United Arab Emirates. There are more than 300 export-oriented units in India. More than 50% of the floriculture units are based in Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. With the technical with the technical collaboration from foreign company, the Indian floriculture industry is poised to increase its share in world trade. चलिए, ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बेस्ड पर क्या क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है द मेन थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन थीम क्या था? तो पैसेज का मेन थीम फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री था। द राइज ऑफ फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया में कैसे फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री जो है ज्यादा आगे बढ़ रहा है। चलिए आगे है द एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन इंडिया। फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन का जो इंडिया में है उसका एरिया कितना लगभग? उसका एरिया 249,000 हेक्टेयर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब बताना है यहाँ पे इसमें से इन पांचों में से ऑप्शन में से
ये कौन सा ऑप्शन है जो पैसेज में नहीं दिया गया है? तो वह दोस्तों इंडिया टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर वाज 581.38 मिलियन डॉलर। ये गलत है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको, यहाँ पे कितना दिया गया है, कहाँ गया, नीचे था। देखिए यहाँ पे कितना 18.94 मिलियन डॉलर है। और यहाँ हमारा ऑप्शन में क्या है, ये ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में क्या है 571.38 मिलियन डॉलर। ये गलत हो जाएगा, यानी ये जो है हमारा इस पैसेज में नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, व्हाट गिव अ मेजर फिलिप टू एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा, द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, विच थ्री स्टेट्स मेजर कल्टिवेटर्स ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स। कौन सा स्टेट है जो, इन स्टेट है जो फ्लोरिकल्चर को प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, कल्टिवेट करता है। तो वो स्टेट कौन सा था, तमिलनाडु था और क्या था, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हमारा पैसे का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बढ़ते आगे ग्रामर की ओर। ग्रामर क्वेश्चन है, ऑल स्टूडेंट्स हैव ए ड्रीम, हैज ए ड्रीम टू स्टडी इन अ गुड यूनिवर्सिटी। तो बताइए हैज ए ड्रीम की जगह पे क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स है, यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे है बना चाहिए ना। तो देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है हैव ड्रीम, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, हैव अ ड्रीम हो, क्या होगा, हैव अ ड्रीम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, आई हूँ डैश योर फ्रेंड एंड विल विशर शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट योर डिसीजन। हु इज योर फ्रेंड, क्या हो जाएगा, हु इज योर फ्रेंड, नहीं, हु एम योर फ्रेंड, आई हु एम योर फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, आई रिमेंबर, इसमें बताना ग्रामेटिकल एरर है, आई रिमेंबर टू मीट हर एट अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली लास्ट ईयर। किस पार्ट में एरर है, ये है दोस्तों टू मीट हर, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए में गलत है, टू मीट हर यहाँ पे नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटिंग हर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई रिमेंबर टू मीटिंग हर हो जाएगा। चलिए यार देखते हैं आगे। चलिए इसमें फिर द ब्लैंक्स है, स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन्स सेविंग ह्यूमन लिव्स डैश थ्रू आउट हिस्ट्री। ये हैव बीन सोल्ड, हैव बीन टोल्ड होगा, हैव बीन टोल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए। आगे, दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे themselves got into it। किस पार्ट में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फॉर द लगेजेस हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि लगेज जो है उसका प्रयोग नहीं होता है, लगेज का लगेज होगा, क्योंकि ये पहले से प्लूरल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज पास मी दैट मिलिट्री पेन ब्लैक। बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर है, मिलिट्री ब्लैक पेन होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द, इसे भी एरर बता रही है, देयर इज ए फ्यू वाटर इन द बॉल ऑन द टेबल। फ्यू वाटर पूछा, फ्यू वाटर तो नहीं होगा, और फ्यू हो जाएगा ना, और फ्यू, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, फ्यू, और फ्यू वाटर है ना, ये नहीं, यहाँ पे ऑलिट्यूड हो जाएगा, क्या होगा, ऑलिट्यूड हो जाएगा।
क्या होगा, अ लिटिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर एनकाउंटर्ड। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट चैलेंज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सुपरलेटिव डिग्री में बोल रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री में कह रहा है करने के लिए, तो मोस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, द शिप सेल्ड स्मूथली ऑनिंग टू डैश विंड्स। यहाँ पे आंसर क्या होगा, फेवरेबल हो जाएगा, क्या होगा, फेवरेबल विंड्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बताइए, डेसिमेट का सिनोनिम क्या होगा, डेसिमेट का सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम को हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची बोलते हैं, इसका सिनोनिम होगा रेक, WREC, रेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताए मेलेडी, मेलेडी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो मेलेडी का सिनोनिम हो जाएगा इलनेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, राहुल थिंक्स दैट दिस इज क्वाइट द चीप रेस्टोरेंट। अब जो अंडरलाइन है यहाँ पे, क्या ये सही है, यहाँ पे इसे कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा। क्वाइट द चीप रेस्टोरेंट, यहाँ पे हो जाएगा क्वाइट अ चीप जो है हो जाएगा यहाँ पे, क्वाइट द चीप नहीं, क्वाइट अ चीप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर बताना है। हैविंग वर्कड फॉर द होल डे यू शैल हैव टेकन सम रेस्ट एंड बिगन अगेन। ये वहां पे हो जाएगा, यू शुड हैव टेकन होगा, क्या होगा, यू शुड हैव टेकन, नॉट यू विल, नॉट यू शैल हैव टेकन होगा। आगे क्वेश्चन है, बताइए आप अपोजिट बताना है इसका, डोज का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, वीक होगा। चलिए अब एंटोनिम बताइए, पेरिलस, पेरिलस का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, पेरिलस का हो जाएगा सेफ, पेरिलस में खतरा होता है, सेफ में क्या होता है, सुरक्षा होना, सुरक्षित रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये सेंटेंस है, बताइए किस पार्ट में रहे, शी अराइव्ड एट मंडे मॉर्निंग टू अटेंड द मैरिज। आई सी अराइव्ड एट मंडे मॉर्निंग, एट होगा क्या, यहाँ पे ऑन होगा, ऑन होता है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑन मंडे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल डैश द डोर, देयर इज नो एडवांस बुकिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एट होगा, एट द डोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुष्मिता's youngest sister is not only beautiful but even intelligent also, इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बट इवन इंटेलिजेंट ऑल्सो, ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, समझे। यहाँ पे बट ऑल्सो होगा, क्या होगा, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, वी कैन नॉट डिले द प्रोजेक्ट डैश इट इज अर्जेंट। वी कैन नॉट डिले द प्रोजेक्ट, हम जो है वो प्रोजेक्ट को डिले नहीं कर सकते, डैश इट इज वो क्या अर्जेंट है, क्योंकि अर्जेंट है, बिकॉज इट इज अर्जेंट, क्या ये होगा, विकास होगा क्या, क्या हो सकता है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल विकास होगा, क्योंकि वो क्या अर्जेंट था वो, इसलिए विकास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बताइए, स्पेल्ड वर्ड यानी इसमें से कौन सा स्पेलिंग गलत है, इसमें इसमें जो है एवर्जन का स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो एवर्जन का स्पेलिंग क्या होगा, तो एवर्जन का स्पेलिंग AVERSION होगा, एवर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बताइए आप, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड का जो है क्या बताना, पैसिव,
क्या करें? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस दैट गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो बताइए इसका क्या होगा? एक्सेस डिनाइड का एक्टिव वॉइस। ये हो जाएगा लेट द एक्सेस बी डिनाइड। लेट द एक्सेस बी डिनाइड, इसका पैसे क्या हो जाएगा? लेट द एक्सेस बी डिनाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अब बताने से इनडायरेक्ट स्पीच आ गया। आप शांति आस्क्ड मी व्हाई डिड यू कीप दिस स्मार्टफोन इन द बिन। बताइए इसका क्या होगा? इनडायरेक्ट। इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा दोस्तों, शांति आस्क्ड मी। शांति क्या होगा? आस्क्ड मी व्हाई आई हैड, क्या होगा? आई हैड kept that smartphone in the bin। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताए, अब इडियम बताना है। कम रेन और साइन। कम रेन और साइन का इडियम बताना। इडियम मतलब मुहावरा होता है। कम रेन और साइन यानी इसका मतलब हो जाएगा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों बैरोमीटर। क्या होगा? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इसका भी वन वर्ड बताना। वन हुज हॉबी इज स्टाम्प कलेक्शन। वन हुज हॉबी इज स्टाम्प कलेक्शन, वो हो जाएगा फिल लेट फिल फिलेट लिस्ट हो, फिलेट लिस्ट। चलिए हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन खत्म होता है। 30 क्वेश्चन था इंग्लिश में। आपको इंग्लिश से 30% अंक लाना है एग्जाम में, किसी भी हर हाल में। अगर नहीं लाते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 को चेक नहीं किया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हिंदी का क्वेश्चन आ गया। तो बताइए संग्रहालय का संदेह विच्छेद क्या होगा? संग्रहालय का संदेह विच्छेद क्या हो जाएगा? तो संग्रहालय का संदेह विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, सम जोड़ ग्रह जोड़ आले हो जाएगा। सम जोड़ ग्रह जोड़ आले हो जाएगा। बताइए अब अत्ययुक्ति शब्द में संधि क्या होगा? अत्ययुक्ति संधि में अत्ययुक्ति शब्द में संधि कौन सा हो जाएगा? यन संधि। क्या सा संधि हो जाएगा? यन संधि हो जाएगा। चलिए संधि के कितने भेद होते हैं बताइए? संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के दोस्तों कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध वो शब्द है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो जठ रागनी हो जाएगा। क्या होगा? जठ रागनी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीर, चीर का अर्थ क्या है बताइए? चीर, चीर का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा पुराना कपड़ा। इस चीर का मतलब पुराना हो जाएगा और इस चीर का मतलब कपड़ा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, स्थिर एवं पृथ्वी के युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? स्थिर और पृथ्वी का युग्म जो है कौन सा सही है इसमें से? तो सही हो जाएगा अचल अचला। अचल अचला हो जाएगा। अचल अचला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए अब अनिकार्थी शब्द बताना। अब्ज। अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, शंख होगा, चंद्रमा होगा या फिर मेघ होगा। मेघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन है, अपेक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा? अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ क्या होगा? अपेक्षा मतलब क्या? अभिलाषा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मरकट का पर्यायवाची बताइए। मरकट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो बंदर हो जाएगा। मरकट का पर्यायवाची क्या होगा? बंदर। बताइए कौन सा शब्द जो है स्वर्ण का पर्यायवाची है? स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जात रूप हो, क्या होगा? जात रूप। स्वर्ण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जात रूप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि भाव का समानार्थी क्या होगा? आदि भाव का, अविभाव का समानार्थी शब्द बताना है। ये हो जाएगा अवतरण। क्या होगा? अवतरण हो जाएगा। निर्माण का विलोम क्या होगा बताइए? निर्माण का विलोम विनाश होगा, नाश होगा, ध्वंस होगा। निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा? ध्वंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, परचून का विलोम शब्द कौन सा होगा बताइए?
प्रचुर का विलोम शब्द, तो प्रचुर का विलोम हो जाएगा अल्प हो जाएगा, क्या होगा अल्प हो जाएगा। बताइए ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, ये तीन शब्द दिया गया, इसमें बताने ई जो है प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो ई जो है वो चमेली में नहीं है, किसमें चमेली में ई प्रत्यय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताइए, प्रत्येक शब्द में क्या उपसर्ग है, तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग हो जाएगा प्रति हो जाएगा, प्रति हो जाएगा उपसर्ग। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या होगा, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है ढीठ शब्द का तत्सम बताइए, ढीठ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, ढीठ शब्द का तत्सम, तो ढीठ शब्द का इसमें से तत्सम कोई भी नहीं होगा, अपरूप में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, धीष्ट हो जाएगा, क्या होगा धीष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा धीष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा धीष्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है बताइए, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, तद्भव जो है वो कोयल हो जाएगा। चलिए अट्टालिका का तद्भव रूप बताइए, अट्टालिका का तद्भव रूप अटारा हो जाएगा, क्या अटारा अटाला या अटल, नहीं अटारा नहीं होगा, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, अटारी होगा, क्या होगा अटारी, अटारी हो जाएगा, अटारी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द जो है योग रूट शब्दों की श्रेणी में आता है, तो कौन आता है दशानन आता है। तो राम सीता के सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, इस अर्थ में कौन सा कारक है, राम सीता से सुंदर, तो कारक कौन अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता क्या, करता क्या हो जाएगा, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता क्या हो जाएगा, कोई नहीं करता ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें देखिए सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, तो यहाँ पे दो है वो डाक, डाक क्या हो जाएगा दोस्तों, डाक करण कारक होता है, भेजी गई क्या, यहाँ पे भेजी गई क्रिया हो जाएगा, क्या होगा क्रिया हो जाएगा, और जो है सभी क्या है, और सभी सभी क्या विशेषण हो जाएगा, और चिट्ठियां करता हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है इंद्रजीत कहा जाता है, क्या कहा जाता है इंद्रजीत कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं इंद्रजीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्यवाचक नहीं दर्शाता है, बताइए इसमें कौन सा जो है कर्तव्यवाचक नहीं दिखाता है, तो वह विनय से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है, कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है, वो है दोस्तों मैंने आम खाया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो एक वचन किसमें, लड़के ने लड़के को मारा है, लड़के ने लड़के को मारा, यहाँ तो बहुवचन, यहाँ भी बहुवचन हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं मतलब हमको इसमें पुलिंग बताना है, बताइए क्या हो जाएगा पुलिंग, नाश होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए धावक तेज गति से दौड़ते, वाक्य में तेज गति जो है क्रिया विशेषण कौन सा भेद है, तेज गति स्थानवाचक परिणामवाचक कालवाचक, तेज जो है तेज गति से क्या परिणाम होगा, परिणामवाचक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है वो हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, तो वाक्य में अव्यय पद क्या हो जाएगा, वाक्य में अव्यय पद क्या हो जाएगा, हमेशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कौन सा संयुक्त क्रिया
कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो वह नाम बोधक। चलिए आगे क्वेश्चन है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो वाक्य में कौन सा क्रिया है? बालक स्कूल में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा सकर्मक क्रिया है? सकर्मक ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सतीश चंचल बालक है। सतीश जो है चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? चंचल बालक कैसा बालक है? चंचल, तो गुणवाचक बता रहा है। कैसा बालक है? वो चंचल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेषण शब्द बताइए, विशेषण पद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आयत लोचना हो, आयत लोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जो है वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण होगा, संकेतवाचक जो क्या होगा? जो, तो जो संबंधवाचक शब्द सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं बताइए? सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। चलिए बताइए आगे, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है? अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या हो जाएगा? तो निशाना क्या होगा? निशाना होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होते हैं दोस्तों भेद, वो 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी इसमें से एक वर्तनी जो है क्या है? वाक्य सेंटेंस जो है, ये शब्द जो है शून्य है। बताइए कौन सा शब्द शून्य है? कोई भी नहीं शून्य, सब गलत है दोस्तों, सब गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बताइए एक की वर्तनी शब्द शुद्ध है, इसमें बताइए कौन सा शुद्ध है? इसमें जो है अनाज जो है शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एक हरा उदाहरण, एक हरा उदाहरण का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे है, जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा बताइए? जो चाहे वो इसमें आएगा, अर्ध विराम आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कुल 25 है। कितना? 25 है। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो यह जो है संयुक्त व्यंजन नहीं हो जाएगा। बताइए स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है या अनुसार की सहायता से होता है या अनुनासिक की सहायता से होता है? स्वरों का उच्चारण जो है बिना किसी की सहायता से होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम किस भाषा के साहित्यकार है? यह है दोस्तों पंजाबी भाषा की है। बताइए ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी की ठाठ, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचयिता है, वो है भूषण है। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? प्रेम चिंगारी जो है वो किस मुसलमान कवि की रचना है? वो है दोस्तों किसकी है? नजफ अली की। किसकी है? नजफ अली की। नजफ अली ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि है। मैथिली के जो सुप्रसिद्ध कवि कौन है? वो है विद्यापति। कौन है? विद्यापति है। चलिए आगे बढ़, आगे देखिए दोस्तों, गद्यांश आ गया। गद्यांश को देखते पढ़ते। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वह शिक्षा क्या जो मानव को पाठ्य पुस्तकों ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंता न दे? यदि हमारी शिक्षा संस्कृत सभ्य सचरित एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उसमें क्या लाभ? सहृदय सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उसे स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दयी और चरित्रहीन है।
संसार के सही वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकता जब तक कि मनुष्य को अभी आत्मिक ज्ञान न हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी है। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्य का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। ठीक। और है क्या? चलिए आप क्वेश्चन बताइए। कौन सा शब्द जो है वो अन उपसर्ग से नहीं बना है? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर अनपढ़ हो जाएगा। बताइए, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता जब उसे आत्मिक ज्ञान हो या फिर शिक्षित हो। कब सुखी कहा जा सकता है मनुष्य को? तो मनुष्य जब उसको आत्मिक ज्ञान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुख साधन का विग्रह और समास है। सुख साधन का विग्रह और समास बताइए। वह सुख और साधन क्या है? ये द्वंद्व समास है। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद हो जाएगा दोस्तों प्रशंसा पत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किससे आवेदन पत्र लिखेंगे? अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किससे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो किससे लिखेंगे? व्यवस्थापक महोदय को लिखेंगे। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान का कच्चा मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास लोकप्रिय का सही अर्थ क्या होगा? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब होगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदर अंदर कहारी में गुड़ पगना का अर्थ बताइए। इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों गुप्त मंत्रा होना। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन वेश व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे का कौन सा अलंकार इस दोहे में दोस्तों हो जाएगा अलंकार कौन सा? अर्थांतरण व्यास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। इस पंक्ति में अलंकार का कौन सा भेद झलकता है? उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। जो सुख सुजस सुलभ मोहे स्वामी में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावान हारी। इस पंक्ति कौन सा छंद है? तो चौपाई। क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि रोई में कौन सा रस है? इसमें रस है करुण रस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो अनुभाव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो वाक्य का शुद्ध रूप होगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। मिश्र वाक्य बताइए, इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना का आधार वाक्य का सही भेद पहचानिए। क्या सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? ये सरल वाक्य है। चलिए, कतर बयोंत में कौन सा समास है? कतर बयोंत में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, आप बीती शब्द में समास बताइए। आप बीती शब्द में समास क्या हो जाएगा?
तो आप बीती समास में जो है वो अधिकरण तत्पुरुष हो जाए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए धीरे धीरे का समास क्या होगा? धीरे धीरे का समास, धीरे धीरे समास हो जाएगा अवयवी भाव। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति दूसरे विवाह कर ले, क्या कर ले? दूसरा विवाह कर ले। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वह पति जिसका, वह स्त्री, सॉरी, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युढ़ा क्या कहते हैं? अध्युढ़ा, अध्युढ़ा कहते हैं। ये दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। पेपर फर्स्ट का टेक्स्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बताइएगा आपका इसमें स्कोर कितना हुआ, क्योंकि इसमें आपको 30% अंक लाने हैं। ठीक, मिलते दोस्तों अब अगले